Hello students, this is Disha Shah and welcome to my YouTube channel. This is the fifth and the last module of the topic set theory, and in this module we will cover the little bit tricky questions, the questions wherein you need to find the maximum and the minimum value. Okay, so let's start with the topic. First question. Students have to choose at least two subjects from chemistry, maths and physics. Number of students choosing all the three subjects. Okay, so there are three subjects. One is maths, physics, and chemistry. Suppose this circle represents maths, this is physics ka circle, and this is chemistry. Students have to choose at least two subjects. Means students should not choose only math. They cannot choose only physics and they cannot choose only chemistry. तो यानी कि ये जो portion है, ये only math, only physics, only chemistry. This has to be 0. Correct? Number of students choosing all the three subjects is 18. So this value is 18. Choosing maths as one of the subject is 23. So maths का circle का जो है value that is 23, and choosing physics as one of the subject is 25. The smallest possible number of students who could choose possibly chemistry as one of the subject. तो basically आपको ये जो chemistry का ये जो circle है उसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है. अभी आप देख रहे हो केमिस्ट्री के सर्कल में ऑलरेडी 18 तो आ चुका है, सो मिनिमम वैल्यू तो 18 के होगा या 18 के ऊपर ही होगा, एंड हैंस एवरीवेयर यू कैन सी दैट ऑप्शंस आर ग्रेटर देन 18. नाउ वी वांट द केमिस्ट्री का सर्कल टू बी मिनिमम. इट मींस कि दिस वैल्यू शुड बी मिनिमम. देखो ये तो 18 है, ये फिक्स है, नथिंग कैन बी डन. दिस इज 0 ऑलरेडी लेस, सो दिस टू वैल्यू हैज टू बी मिनिमम. देन ओनली ये केमिस्ट्री का सर्कल का वैल्यू विल बिकम मिनिमम. और ये मिनिमम कब बनेगा? जब ये वाली वैल्यू जो मैथ्स एंड फिजिक्स को रिप्रेजेंट करती है ये वाली मैक्सिमम होगी, तब जाके यहाँ पर वी कैन फिट द मिनिमम वैल्यू. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ये वैल्यू, ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन विच रिप्रेजेंट्स ओनली मैथ्स एंड फिजिक्स, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम क्या बना सकते हैं? नाउ वी नो दैट कि मैथ का फुल सर्कल रिप्रेजेंट्स 23, उसमें से ये 0 है, इसको हमें मिनिमम बनाना है. मिनिमम यानी कि 0 ही बनाना है. तो इफ दिस इज 18, कैन वी से दिस वैल्यू हैज टू बी 5, so that 18 plus 5 becomes 23. Okay, and now physics का circle represents, this full circle represents 25, उसमें से this is 5, this is 18, ये already 0 है, so this value has to be 2. 2 से आप कम नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं कि आप उसे 1 या 0 बना सकते. ओके, सो केमिस्ट्री का सर्कल का मिनिमम वैल्यू पॉसिबल इज 18 plus 2, that is equal to 20. बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसमें मिनिमम वैल्यू देख के 19 पे टिक कर देते हैं, विच इज रॉन्ग. जस्ट बिकॉज 19 इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट डजंट मीन कि आपको उसके ऊपर टिक करना है. ये द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 20. नेक्स्ट, दिस इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन. Among 100 students, 105 like pizza, 134 like burger. Then the number of students who like only burger can possibly be. ठीक है, तो ये पिज्जा वाले लोग हैं एंड ये बर्गर. People who like pizza is 105. People who like burger is 134. Okay, और total students है 200. So only burger निकालना है आपको. This value you need to find out. Okay, so let's assume कि ये जो 200 स्टूडेंट है उन सबको पिज्जा बर्गर ही पसंद है और कुछ पसंद नहीं है. So पिज्जा प्लस बर्गर का यूनियन would be 200. People who like pizza is 105. People who like burger is 134. So what we need to do, हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है. This value we need to find out. तो हम इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं पहले. So the people who like pizza and burger both, this is nothing but people who like pizza, that is 105, plus people who like burger, that is 134, minus दोनों का intersection, that is 200. 105 plus 134 is 239. 239 minus 200, so it is 39. So one value is 39, but आप देख रहे हो यहाँ पर 39 कहीं पर भी है ही नहीं. अभी इसमें क्या हुआ है, हमने ये अज्यूम किया है कि जितने भी स्टूडेंट्स है, जिनका भी ये सर्वे हुआ है, जितने भी स्टूडेंट्स थे उन सबको पिज्जा एंड बर्गर पसंद है. सो वी कैन से कि ये जो वैल्यू थी ये, अच्छा सॉरी 1 मिनट, दिस इज जस्ट द इंटरसेक्शन, दिस इज इंटरसेक्शन, दिस इज नॉट द वैल्यू.
एंड बर्गर का पूरा वैल्यू है 134, उसमें से दिस पार्ट इज 39, सो वी कैन से कि ये जो पोर्शन हमें निकालना था ओनली बर्गर, ओनली बर्गर, ओनली बर्गर, this value is 134 minus 39, that is equal to 14 minus 5 is 95, this value is 95. now once again आप देख रहे हो ऑप्शन में कहीं पर भी 95 नहीं है, ये इसीलिए नहीं है, तो आप ऐसा नहीं है कि 96 नियरेस्ट वैल्यू है तो आप उसके ऊपर टिक करके आ जाओ, नहीं, डोंट डू दैट, दैट इज नॉट द करेक्ट वे. ये जो 95 है यहाँ पर हमने अज्यूम किया है कि ऑल दिस 200 स्टूडेंट्स दे लाइक पिज्जा एंड बर्गर, सो ओनली बर्गर का वी कैन से दैट दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, इससे ज्यादा वैल्यू ओनली बर्गर की हो ही नहीं सकती, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है, नाउ लेट्स फाइंड द मिनिमम वैल्यू, लेट्स फाइंड द मिनिमम वैल्यू. तो हम मान के चलते हैं कि बहुत कम स्टूडेंट्स है जिन्हें पिज्जा बर्गर पसंद है, कोई और स्टूडेंट्स होगा जिसे इडली डोसा पसंद होगा. सो पिज्जा का सर्कल का वैल्यू इज 105, बर्गर का सर्कल का वैल्यू इज 134. वी वांट दिस यूनियन, ये जो पिज्जा एंड बर्गर का यूनियन है, इट इज टू बी मिनिमम, वी डोंट वांट दैट इट टू बी 200, हम चाहते हैं कि ये मिनिमम हो. मिनिमम के लिए क्या करना है, ये वाला जो पोर्शन है उसे मैक्सिमम बनाना है, इंटरसेक्शन वाला, क्योंकि जितना इंटरसेक्शन का पोर्शन मैक्सिमम होगा उतना ही टोटल वैल्यू मिनिमम होगा. सो दिस वैल्यू मिनिमम, दिस ये जो है इंटरसेक्शन, उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है. नाउ दिस पिज्जा का फुल सर्कल रिप्रेजेंट्स 105, तो हम मान के चलते हैं कि ये जो वो 105 लोग हैं जिसे पिज्जा पसंद है उन्हें बर्गर भी पसंद है, ये हम मान के चलते हैं. ठीक है, सो ये वाले लोग जिन्हें सिर्फ और सिर्फ पिज्जा पसंद है, दैट इज 0, and this only burger, now you can see that this full circle represents 134 and उसमें से ये वाला पार्ट 105 रिप्रेजेंट करता है, सो ओनली बर्गर इज 134 माइनस 105, दैट इज इक्वल टू 29, यानी कि बर्गर की मिनिमम वैल्यू, ओनली बर्गर की मिनिमम वैल्यू इज 29. तो बर्गर का मैक्सिमम वैल्यू 95, मिनिमम वैल्यू इज 29, तो आंसर शुड बी समवेयर बिटवीन 29 एंड 95. 29 एंड 95 के बीच में एक ही आंसर है, दैट इज ऑप्शन डी 93. तो दिस इज द ओनली पॉसिबल वैल्यू. 26 पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि वो बहुत कम है, 23 इज नॉट पॉसिबल, 96 बहुत ज्यादा है, सो दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. सो यहां पर हमने क्या किया, हमने मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू निकाला. निमसेट 2022 का क्वेश्चन, वेरी इट्स ब्यूटीफुल क्वेश्चन. अ सर्वे इज डन अमंग अ पॉपुलेशन ऑफ 200 पीपल. इट इज फाउंड दैट 60% लाइक टी एंड 72% लाइक कॉफी. तो ये टी वाले लोग हैं 60% एंड कॉफी वाला 72%. ठीक है, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बोथ टी एंड कॉफी. तो ये जो वैल्यू है दिस इज एक्स, ओके, एंड x lies between m and n, then they choose the correct option. तो बेसिकली आप ऑप्शन देख रहे हो, you need to find the value of n and m, यानी कि आपको ये x की मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है. जैसे हमने बर्गर वाले क्वेश्चन में मिनिमम मैक्सिमम निकाला था, इन द सेम वे वी नीड टू फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू. मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालोगे, मैक्सिमम वैल्यू ये निकाल के करोगे कि यू विल अज्यूम कि ये जो 200 के 200 लोग हैं उन्हें टी एंड कॉफी पसंद है. ओके, सो ये जो सर्कल है ये पूरा इसको हम मान के चलते कि ये पूरा 100% है, सबको सब कुछ पसंद है. ठीक है, सो वी अज्यूम दैट दिस इज 100%. ओके, सो नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टी is 60%, number of people like coffee is 72% and T यूनियन C की वैल्यू, इसको हम मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे क्योंकि हमें X की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है. मैक्सिमम इज 100%, 100% के ऊपर तो कुछ नहीं हो सकता. ठीक है, सो फ्रॉम दिस T इंटरसेक्शन C कितना हो जाएगा, इट इज 60 plus 72 minus 100, that is equal to 132 minus 100, that is equal to 32, but this is in percentage, so 32%. so actually में T union C का value wise if you'll see then it is 32%,
of 200. 32% of 200 is 64. So maximum value of x is 64. Now let's find the minimum value. मिनिमम के लिए हम क्या करेंगे? टी का है 60%, कॉफी इज 72%. इसकी हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है. वी नीड टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू. सॉरी, ये मिनिमम होगी ना, बिकॉज ये हमने इंटरसेक्शन निकाला है. माय मिस्टेक. दिस हैज टू बी मिनिमम वैल्यू, क्योंकि ये हमने ये वाला पोर्शन सबसे ज्यादा रखा है. दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन, इसको हमने ज्यादा रखा है. बट नाउ वी नीड टू फाइंड दिस एक्स मैक्सिमम. इसको मैक्सिमम रखना है. इसको मैक्सिमम कब रखेंगे? मतलब इस ये पोर्शन के मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? नाउ दिस इज 60, दिस इज 72. सो कैन वी से इसकी मैक्सिमम वैल्यू 60% हो सकती है. 60%. 60% ऑफ किसका? 60% ऑफ 200. 60% of 200 is 120. Okay. So this is the maximum value. Maximum value यानी कि n, and this is the minimum value यानी कि m. Correct? Minimum value को m बोला है and maximum value is n. So from this we can say कि n minus m is equal to 120 minus 64. That is equal to 56 is the answer. So n minus m is equal to 56. Okay, so with this we are through with the topic set theory. If you have understood this particular topic, then subscribe to the channel and keep on watching and keep on practicing math, because math is easy. Thank you.